لبنان بارڈر پر کل رات دوبارہ سے ناظرین اٹیک کیا گیا ہے. 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 4 اس میں انجرڈ ہوئے ہیں. اسرائیل کو لگتا ہے کہ اگر ہم اب جنگ میں گئے تو ہم جنگ ہار سکتے. جو تمام تنظیموں کے جنگجو ہیں وہ بھی لبنان بارڈر پر پہنچ رہے ہیں. جو سائپرس کا جو ملک ہے اس میں جو ان کا سفارت خانہ ہے اسرائیل کا, یہاں پر بھی اٹیک کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو اسرائیل کا دارالحکومت ہے تل ابیب, وہاں پر بھی آج صبح 5 سے 7 راکٹس جو ہیں وہ فائر کیے گئے. یہ آپ دیکھیے کہ واشنگٹن پوسٹ یہ لکھ رہا ہے کہ جب ان کے فوجی اندر جائیں گے تو ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. عمارتیں ہیں وہاں پر کس طرح سے سنائپرز کھڑے ہوں گے. 2 ماں بیٹیوں کو رہا کیا گیا اور اس خبر کو بہت پازیٹیولی لیا گیا اور یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت سامنے آئی. آپ یہ تصاویر بھی ان دونوں کی دیکھ رہے ہوں گے. یہ امریکی نیشنل ہیں اور ان دونوں کو رہا کر دیا گیا. جارڈن کے جو کنگ ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ اب ہماری ریڈ لائن کراس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر غزہ کے شہریوں کو وہاں سے فورسفلی ڈسپلیس کیا گیا, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, چپ نہیں بیٹھیں گے. آپ یہ اسکرین پر یہ تصویر دیکھیے, یہ اس وقت کی ہے کہ جب آیا صوفیہ ترکی میں, جب اس کو 100 سال کے بعد مسجد میں بنایا گیا تو اس وقت علامتی طور پر تلوار جو ہے وہ نیام میں تھی. جب کل جمعہ پڑھایا گیا یہ علامتی تلوار جو ہے انہوں نے نیام سے نکال لی ہے. ناظرین, غزہ پر حملہ کر کے اسرائیل بری طرح پھنس چکا ہے کیونکہ بکھرے ہوئے عرب اب اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں اور فلسطین کی ایک آزاد ریاست کا قیام عمل میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. پچھلے 2 دنوں سے اسرائیل کو ایک کے بعد ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس وقت بھی بہت سی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس سامنے آئی ہیں. تو بہت ساری تفصیلات ہیں میرے پاس, 1 بائی 1 تمام جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور اس جنگ میں کس طرح سے عرب اپنی سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے اسرائیل پر اور اس کے اتحادی پر بھاری ہوتے ہوئے, ڈومیننس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم لبنان بارڈر پر چلتے ہیں. لبنان بارڈر پر کل رات دوبارہ سے ناظرین اٹیک کیا گیا ہے حزب اللہ کی جانب سے اور یہاں پر ان کے 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 4 اس میں انجرڈ ہوئے ہیں. اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ کل رات ایک جھڑپ ہوئی تھی اور اس جھڑپ کے بعد یہ خطرہ تھا کہ ایسکلیشن ہو سکتی ہے, یعنی اسرائیل اور لبنان کے درمیان باقاعدہ جنگ چھڑ سکتی ہے. اور آفیشلز کے مطابق جو ڈیفنس منسٹری ہے انہوں نے پی ایم سے, یعنی اسرائیلی پی ایم سے لبنان پر باقاعدہ جنگ کی پرمیشن بھی مانگی, لیکن چونکہ یو ایس کا بہت زیادہ پریشر ہے اور اسرائیل کو لگتا ہے کہ اگر ہم اب جنگ میں گئے تو ہم جنگ ہار سکتے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ اجازت نہیں دی. تو حزب اللہ اس چیز کا باقاعدہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور یہاں پر لبنان بارڈر پر جھڑپیں جاری ہیں مسلسل. اسرائیلی یہاں پر مارے جا رہے ہیں اور جو ٹینکس ہیں ان کے کئی ان کے جو ٹینک ہیں وہ اڑا دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پورے جو عرب ہے, یمن آپ کا جو ہے وہ عراق ہے, سیریا ہے, یہاں سے جو تمام تنظیموں کے جنگجو ہیں وہ بھی لبنان بارڈر پر پہنچ رہے ہیں تاکہ کسی بھی وقت جب جنگ چھڑے تو وہ مکمل طور پر اس کے لیے تیار ہوں اور اسرائیل پر پورا پریشر جو ہے وہ بنا کے رکھے. پچھلے 4-5 دنوں سے اسرائیل مکمل طور پر حملوں کی زد میں ہے. کئی ممالک میں اس کے سفارت خانوں پر اٹیکس کیے گئے ہیں, اس کے بعد مظاہرے کیے گئے ہیں. اور ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اب سے کچھ دیر پہلے جو سائپرس کا جو ملک ہے اس میں جو ان کا سفارت خانہ ہے اسرائیل کا, یہاں پر بھی اٹیک کیا گیا ہے. یہ سائپرس جو ہے وہ بالکل اسرائیل کے بالکل ساتھ ہے, یعنی کوئی زمینی راستہ تو نہیں ہے لیکن اس لحاظ سے بھی یہ ایک ہمسایہ ملک کنسیڈر ہوگا. تو سائپرس پر بھی ابھی کچھ دیر پہلے ان کا اسرائیل کا جو سفارت خانہ ہے وہاں پر حملہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو امریکی انسٹالمنٹس ہیں پورے عرب میں ان پر بھی کنٹینیوسلی اٹیکس کیے جا رہے ہیں. کل رات دوبارہ عراق میں جو ان کی ایک بیس ہے اور آئل فیلڈ ہے وہاں پر اٹیک کیا گیا ہے. تو عرب جو ہیں وہ مسلسل اس حکمت عملی کے ساتھ چل رہے ہیں کہ یو ایس پر پریشر دبا کے رکھو تاکہ وہ ان کی حمایت میں آگے نہ بڑھ سکے, وہ کوئی اپنی آرمی لڑنے کے لیے نہ بھیج دے, ایڈ جتنی مرضی وہ بھیجتے رہیں. اور اس کے علاوہ جو اسرائیل کا دارالحکومت ہے تل ابیب, وہاں پر بھی آج صبح 5 سے 7 راکٹس جو ہیں وہ فائر کیے گئے اور وہاں پر بھی سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں. تو یہ اب اسرائیل کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے کہ وہ کون سے فرنٹ پر جا کر لڑیں گے. میزائل ان پر بھی آ رہے ہیں, اگر وہ بمباری کر رہے ہیں, جتنی بمباری وہ غزہ پر کرتے ہیں اس کے مقابل میں
उन पर भी रॉकेट्स फायर होते हैं। इसके अलावा इजराइल जो है वो पूरे मिडल ईस्ट से जो जहां पर उनके सिफारत खाने हैं, एक तो वो स्टाफ उन्होंने वापस बुला लिया है, इसके साथ साथ जो उनके शहरी हैं वो पूरे मिडल ईस्ट से उन्होंने वापस बुला लिया। उन्होंने कहा जी आप फिल फॉर वहां से निकलें क्योंकि किसी भी वक्त जो है वो एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। तो पूरे मिडल ईस्ट से जहां जहां उनके शहरी हैं वो वापस आ चुके हैं। अच्छा, इससे आगे चलिए तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि गजा पर 3 लाख से ज्यादा फौज जो खड़ी है इजराइल की, वो ऑपरेशन क्यों नहीं कर रही, ग्राउंड ऑपरेशन, जो कि उनकी इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश है और वो समझते हैं कि वो गजा पर कब्जा कर सकते हैं। ताकत भी वो समझते हैं कि इस वक्त वो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। तो इस सब के बावजूद वो ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे? 3-4 दिन से उनकी फौज वहां पर स्टैंड बाय पर क्यों खड़ी है? तो इस हवाले से मैं वाशिंगटन पोस्ट की उनका आर्टिकल जो कि तस्वीरों पर मुबनी है, उन्होंने तस्वीर भी शेयर की है, वो आपको दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरह से बयान किया है कि दरअसल इजराइल किस तरह से डर रहा है अब गजा में ऑपरेशन करने के लिए, जो कि पहले वो बदमाशी और तकब्बुर का मुजाहरा कर रहा था, अब वो किस तरह से खौफजदा है गजा में जमीनी ऑपरेशन करने से। तो ये कुछ तस्वीर आप देख, तो ये आप देखिए कि वाशिंगटन पोस्ट ये लिख रहा है कि जब इनके फौजी अंदर जाएंगे तो उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जो इमारतें हैं वहां पर किस तरह से स्नाइपर्स खड़े होंगे, इसके साथ साथ वहां पर एंटी टैंक जो मिसाइल हैं किस तरह से उन पर फायर किए जाएंगे। फिर सबसे बड़ा खतरा जो है वो इनको जो टनल्स हैं उससे बहुत ज्यादा है। इन्हें नहीं पता कि कौन सी सुरंग कहां पर है, वो कहां से खुलती है, तो वहां पर भी इनके लिए बहुत बड़ा घात जो है वो तैयार होगा, तो उसके लिए भी ये सामना नहीं कर सकते। फिर जो बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है उनके पास ड्रोन की, और आप देखिए कि इसमें वो एग्रीकल्चर ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी दुनिया हैरान है कि वो किस तरह से चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं। जो एग्रीकल्चर ड्रोन हैं उनको वो इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो एक तरफ से स्नाइपर्स अटैक कर रहे होंगे, एंटी टैंक मिसाइल उन पर चलाए जा रहे होंगे, सुरंगों से निकलकर वो घात लगाकर इन पर हमला करेंगे, फिर ड्रोन से इन पर हमला करेंगे। तो वो जो इंतहाई गुंजान आबाद एरिया है गजा का, वहां से इनका बच निकलना और वहां से कामयाब होकर वापस आना नामुमकिन है। यही बात मैंने कल की वीडियो में आपको यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर की बताई थी कि उन्होंने कहा था ये कि तारीख का सबसे बड़ा घात होगा, अगर ये अंदर जाएंगे तो वहां पर इन सब की कब्रें बन जाएंगी। तो यही आज वाशिंगटन पोस्ट ने तस्वीरों के जरिए बताया है कि अब इजराइल को ये बात समझ आ रही है और वो किस तरह से खौफजदा है अंदर जाने पर। और इसके साथ साथ यूएस का मुसलसल प्रेशर है इजराइल पर, और वो नहीं चाहते। उसकी 2 वजूहात पहले भी बता चुका हूं कि एक तो पूरे मिडल ईस्ट में उनको अपने मफादात का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे उनके इंस्टॉलमेंट्स पर हमले हो रहे हैं, जो कि एक क्लेवर चाल है पूरे जो अरब की ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि यूएस पर प्रेशर बढ़ा के रखो। इसके साथ साथ यूएस ये समझता है कि इस वक्त इजराइल एक कमजोर पोजीशन में है। अगर इजराइल गजा पर ये ऑपरेशन करता है तो फिर जो लेबनान से इन पर अटैक होगा, बाकी जो बॉर्डर्स हैं वहां पर इन पर अटैक होगा, तो तमाम फ्रंट पर ये इजराइल लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। तो इजराइल कमज़ोर होगा और शिकस्त खाएगा, और बदले में जो इनके पास इलाका है वो भी गंवा बैठेगा और फ़लस्तीन की रियासत भी एक वजूद में आ सकती है। तो इसलिए यूएस भी खौफज़दा है और वो बार बार इनको वार्न कर रहा है। इसलिए अब इजराइल स्टैंड बाय पर तो खड़ा है, यानी वो दुनिया को तो यही बता रहा है, एक प्रेशर उन्होंने बना कर रखा है कि जो हमारी फौज वहां पर खड़ी है। लेकिन बहुत मुश्किल होगा और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी अगर वो अंदर जाते हैं, अगर गजा को इन्वेड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आगे चलिए तो कल रात जो एक और बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई वो है हॉस्टेजेस का रिलीज किया जाना। जब से ये तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन शुरू हुआ है तो वहां पर 200 से ज्यादा हॉस्टेजेस ये अपने साथ लेकर गए थे, और उसमें अमेरिकन और दीगर फॉरेन नेशनल्स भी शामिल हैं। तो कल रात उनमें से 2 माँ बेटियों को रिहा किया गया और इस खबर को बहुत पॉजिटिवली लिया गया और ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त सामने आई। आप ये तस्वीर भी इन दोनों की देख रहे होंगे, ये अमेरिकी नेशनल हैं और इन दोनों को रिहा कर दिया गया। और इसकी 2 स्ट्रेटजीज हैं। एक एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद ये एक टाइम बाय करने का भी एक तरीका हो कि वहां से वो हॉस्टेजेस को रिलीज करते रहेंगे, 2-3 दिन बाद 1-2 कर दिए। और ये भी एक वजह है कि अमेरिका ये चाहता है कि जब तक उसके तमाम नेशनल्स निकाल ना लिए जाएं,
तब तक ऑपरेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो मैंने आपको बताया कि यूएस जो प्रेशर उन्होंने बना कर रखा है, उसकी एक वजह यह भी है कि चूंकि उन्होंने बड़ी क्लेवर चाल चली है कि हॉस्टेजेस अपने साथ लेकर गए हैं, तो वहां पर उनको इन्वेड करना, ग्राउंड ऑपरेशन करना, ये भी एक उन्होंने अपने खिलाफ एक शील्ड बना रखी है। यानी हॉस्टेजेस जब तक हैं तो भी उनके लिए एक शील्ड है कि हमला करना उन पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अच्छा, अगली सबसे बड़ी खबर यह है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मिस्र में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें इंग्लैंड और रशिया, इटली, यूएस के रिप्रेजेंटेटिव और दीगर जो बड़ी ताकतें हैं, 30 से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं। और वहाँ पर जो उनका मुश्तरका एलामिया है या जो बयानात वहाँ से सामने आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंतहाई अहमियत के हामिल है। मिसाल के तौर पर जॉर्डन के जो किंग है, उन्होंने कहा है जी कि ये अब हमारी रेड लाइन क्रॉस होती हुई नज़र आ रही है। अगर गज़ा के शहरियों को वहाँ से फोर्सफुली डिस्प्लेस किया गया, यानी इजराइल का एक इरादा ये भी है कि इन पर बमबारी करके रखो ताकि ये गज़ा से निकलकर दूसरे इलाकों में चले जाएं, यानी कि मुहाजिर बन जाए और ये पूरा गज़ा ही खाली कर जाएं, और उसके बाद हम आसानी से इस पर कब्जा कर लेंगे और ये जो मुहाजिर हैं ये कभी अपनी सरजमीन पर वापस ही नहीं आ सकेंगे और गज़ा हम हड़प कर लेंगे। तो उन्होंने कहा जी ये हमारी रेड लाइन है, अगर वहाँ से फोर्सफुली उनको निकाला गया तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। आप रेड लाइन का मतलब समझते हैं ना, और जब ये सख्त अल्फाज डिप्लोमेसी में इस्तेमाल किए जाएं तो फिर उसका क्या मतलब होता है कि इसके आगे फिर हमने बिल्कुल चुप नहीं बैठना। उसके साथ साथ जो बड़े ताकतें हैं उन्होंने भी कहा है कि जी जो हल है, मिसाल के तौर पर जो यूएन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि जो हल है अमन का वो यही है कि फ़लस्तीन की रियासत कायम होगी। यानी आप देखिए कि इसराइल का इतना प्रेशर, उनकी डिप्लोमेसी, अमेरिका उनका इत्तेहादी, बरतानिया उनके साथ खड़ा है, लेकिन आज वो सारी ताकतें वहाँ पर खड़ी होकर कह रही हैं कि अब फ़लस्तीन की रियासत कायम होगी तो बात आगे बढ़ेगी, वगरना इसके अलावा हम बात आगे नहीं बढ़ा सकते। यही वाहिद हल है। फिर इसी तरह मिस्र के सदर ने वहाँ पर बयान दिया है कि ये जो रिफा बॉर्डर है जो कि गज़ा और मिस्र के दरमियान है, उन्होंने कहा है जी यहाँ पर हम खोलना चाह रहे हैं और यहाँ पर इमदाद आगे देना चाह रहे हैं गज़ा के लोगों को, लेकिन यहाँ पर इजराइल ने बमबारी की और इस वजह से ये बॉर्डर बंद रहा। और उन्होंने कहा है कि जी हमारा फुल एंड फाइनल डिसीजन, ये हमने इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि फ़लस्तीन की रियासत कायम होगी तो बात आगे बढ़ेगी, उसके अलावा हम किसी चीज़ पर आमादा नहीं होंगे। तुर्की के सदर का बयान आया, MBS का बयान आया कि हम ऐसे हालात अब पैदा करने जा रहे हैं कि फ़लस्तीन की रियासत का अमल जो है वो नागुज़ीर हो जाएगा। और तुर्की की मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप ये स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, ये उस वक़्त की है कि जब आया सोफिया तुर्की में, जो जब उसको 100 साल के बाद मस्जिद में बनाया गया, तो उस वक़्त अलामती तौर पर तलवार जो है वो न्याम में थी, ठीक है। लेकिन आज जब कल ये जुमा पढ़ाया गया है तो ये अलामती तलवार जो है उन्होंने नियाम से निकाल ली है। अब आप खुद सोचिए कि इसका मतलब क्या है कि वो तलवार जो उन्होंने नियाम में रखी हुई थी, अब उन्होंने वो तलवार नियाम से निकाल ली है। जिस तरह से ईरान ने जो ब्लैक फ्लैग है वो अपनी एक अलामती मस्जिद पर लहराया था, इसी तरह उन्होंने नियाम से अपनी तलवार निकाली। और आप ये भी याद रखिए कि यरूशलेम के फ़लस्तीन के जो आखिरी वारिस हैं, जो उनके आखिरी हुक्मरान हैं, वो भी तुर्क हैं। सल्तनत उस्मानिया के तहत आखिरी ये तुर्की के हुक्मरान थे जो जिनके पास यरूशलेम था, फ़लस्तीन था, और जंग अज़ीम अव्वल में ये चला गया इनके पास। तो आखिरी जो वारिस हैं वो भी तुर्क हैं। तो उनको अपनी गैरत इस लिहाज से भी आप देखिए कि उन्हें लगता है कि अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये उनकी गैरत पर सवाल है, क्योंकि उनसे ये छीना गया ना, उनके हाथों से ये यहूदियों के हाथ में गया है। तो अगर वो इन लोगों की अगर हिफाजत नहीं कर सकते, उनकी गैरत पर भी सवाल है। और आखिरी सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सेनेटर्स इस वक्त सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, जहां पर वो वली अहद से मुलाकात करेंगे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेलीगेशन है जो कि MBS के पास पहुंचा है। आप देखिए कि MBS के पास पहले अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन हमने देखा, वहां पर गए और वहां से उनको नाकाम लौटना पड़ा। फिर ऋषि सुनक जो कि बरतानिया के PM वो वहाँ पर पहुँचे और उस मीटिंग की भी तफसीलात सामने नहीं आई। और उसकी वजह ये थी कि जो वो बात MBS से मनवाना चाह रहे थे वो जो है वो नहीं मानी MBS ने, इसलिए एक शर्म के मारे वो तफसीलात सामने नहीं लाई गई। और अब ये जो सेनेटर पहुँचा, ये इंतहाई ये जो डेलीगेशन है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसकी एक बुनियादी वजह आप ये समझिए कि बाइडन ने
105 बिलियन डॉलर्स की इमदाद का कह रखा है कांग्रेस को, यानी उनकी सेनेट और पार्लियामेंट को, कि आप जो है वो 105 बिलियन डॉलर का इमदाद दें इजराइल और यूक्रेन को। और ये चूंकि सेनेट से पास होनी है और ये डेलीगेशन अब MBS के पास पहुंचा है, और इसमें बड़े जो इंतहाई जिन्हें आप कह रहे हैं कि मौसर जो किरदार अदा करते हैं उनकी डिप्लोमेसी में, वो सेनेटर MBS के पास पहुंचे। तो एक तरफ वो एड 105 बिलियन डॉलर की वो पेंडिंग है सेनेट में, और सेनेटर जो है वो MBS के पास पहुंचे हुए हैं। तो सोचिए इसका आप क्या मतलब निकाल सकते हो। और 105 बिलियन डॉलर कितने होते हैं? तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इजराइल को जब से उसका क़याम अमल में आया 1946 से लेकर अब तक 263 अरब डॉलर उन्होंने इमदाद दी है, और यानी इतने 75 सालों में उन्होंने 263 डॉलर दिए हैं, और अभी वो एक ही वक्त में 105 बिलियन डॉलर्स देने जा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है जो कि इजराइल को मिलने जा रही है, और सेनेट से अभी ये पास होनी है। और जो इंतहाई जिनका किरदार है, जो मुअस्सर हैं, वो सेनेटर्स MBS के पास पहुंचे हुए हैं। तो इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलता है? क्योंकि MBS के जो बयानात सामने आए, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम अब फ़लस्तीन के क़याम से पीछे नहीं हटेंगे। बड़ा सख्त उन्होंने मौक़िफ़ अपना रखा है। तो इस मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है, ये देखना ज़रूरी है। और आखिर में मैं बहुत ही दुख के साथ आपको दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त नॉर्दर्न गज़ा में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बमबारी की गई है इजराइल की जानिब से, वहाँ पर मलबे के नीचे अभी भी मासूम फ़लस्तीनियों की लाशें उस मलबे तले दबी हैं, जिनको निकालने वाला अभी तक कोई नहीं है। और नॉर्दर्न गज़ा से लाखों लोग साउथ में जा चुके हैं, वो इलाका खाली हो चुका है, बेशतर लोग वहाँ से जा चुके हैं, और जो लाशें हैं वो अभी तक मलबे में दबी हैं, उनको अभी तक निकालने वाला कोई नहीं है। तो कल को क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन फ़लस्तीनी रोज़ बरोज़ हार रहे हैं, रोज़ बरोज़ अपनी जानें दे रहे हैं। इसको फिल फॉर रोकना चाहिए। और अरबों के लिए अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि दौलत उनके पास है, ताकत उनके पास है, क्या चीज़ है जो आज अरबों के पास नहीं है? तो क्या वो मासूम फ़लस्तीनियों की जान की हिफाजत नहीं दे सकते? क्या वो उनकी ज़मानत नहीं दे सकते उनकी जानों की? तो ये आज अरब के लिए सबसे बड़ा सवाल है। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त। अल्लाह।